If you guys can hear me, just show me thumbs up, right now. आप मुझे सुन सकते हो? So show me thumbs up. नंदिनी, to show thumbs up, 3 dots को click करना है. अपनी screen touch करो. Very good. Thank you. Now I'm starting the class. Good morning, all of you. So welcome Nandini and Dimple to joining the class for the first time in reading comprehension. Although Dimple was there in the SST class. So first thing first, do now. अगर आपके पास कॉपी पेन है then it's best thing. नहीं है तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स का यूज करना एंड जो भी मैं एक्सरसाइज बोलूँ साथ ही साथ क्लास में करते जाना. ये रिकॉर्डिंग्स बाकी बच्चे भी देखेंगे एंड यू गाइज नो दैट. सो जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना. सो पार्टिसिपेशन के मीडियम्स हैं इन द जूम. अगर आपको बोलने का मन करे तो अनम्यूट करो अपने आप को, ठीक है. टू अनम्यूट योर सेल्फ मेक श्योर कि ये स्पीकर आइकन पे क्लिक करो. अगर ये रेड नहीं शो कर रहा है तो फिर आप बोल सकते हो और अदर्स कैन हियर यू. सेकेंड थिंग, आप इंटरेक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस चैट बॉक्स. अपनी स्क्रीन पे 3 डॉट्स को क्लिक करो. अगर आप किसी चीज़ से एग्री करते हो तो थम्स अप शो कर सकते हो. कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप क्लैप कर सकते हो, या फिर चैट बॉक्स जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं वैसे करके मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ नहीं समझ में आई या मुझे ये चीज़ समझ में आई. सब ठीक है. सो दिस इज द नॉर्मल इंस्ट्रक्शन. यूज इट ड्यूरिंग दैट procedure. Okay, so yeah, let me clear this one up. Yeah, so what we are going to do, so I will request you, all of you, take 30 seconds और chat box पे जाओ and tell what you are feeling right now. Although I know कि आप लोगों ने बोला कि you are fine, good, so just type it in a chat box. Use the chat box to type your feelings. Or if you are all feeling good, just show me thumbs up. I will move ahead. ठीक है, Dimple is feeling good. Kishore is surprised. Okay. Kumkum is fine. Okay, Kishore is using different things. Yeah, Zoom has incorporated different reactions. You can use that. ठीक है, तो today we will begin the class and Kumkum is happy. So thank you guys. Welcome to the class. तो हम लोग इसी की continuing class करेंगे. So Veenal has joined for the first time. So let's welcome her. Let her take some 30 seconds to come in the class. Yeah. Hi Vinal, can you hear us? Till then, all of you please read this objective. क्या क्या करने वाले हैं? Hi Vinal, if you can hear us, then just show me thumbs up by clicking on your screen. ठीक है? अपनी स्क्रीन पे क्लिक करो. There is a 3 dots and show me thumbs up if you can hear me. Vinal, can you hear? अनम्यूट करके बोलने की कोशिश करो वीनल. Okay, she is connecting. So we will wait. This is her first class. Hi Veenal, if you can hear us, तो unmute करके hi बोल दो. There are your friends Kumkum, Deepa, Kishore and Nandini. So please say hi to your friends. Okay. ठीक है विनल. Now you can hear us. तो जब भी मैं पूछूं कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, so to do that, so she said hi in a chat box. Thank you Veenal. Now you can mute yourself. जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे ही स्पीकर को ऑन करके या ऑफ करके आंसर देना. ओके. और यूज दिस 3 डॉट्स और जब भी कोई चीज समझ में आए तो थम्स अप शो करना. ओके, डन. So we will begin the class. Okay. Now mute yourself. Okay. So let's begin the class. So here we are. Okay. Sorry, Dimple. Yeah. So Nandini and when I say, then only unmute yourself. नहीं तो अपने आप को unmute मत करना. ठीक है? Now I'm going to start the class. तो कौन-कौन इस चीज को जानता है? Who has seen this type of garbage in Ahmedabad, garbage mountain in Ahmedabad? If you all have seen, just show me thumbs up. Okay, Veenal, have you seen? To show thumbs up,
आपको जाना है, 3 डॉट्स पे टच करना है एंड देन शो थम्स अप, और यू कैन टाइप इन अ चैट बॉक्स यस आई हैव सीन दैट। ओके, सो दिस इज द टॉपिक टुडे। हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू इस चीज को एनालाइज करेंगे। वेरी गुड वीनल, थैंक यू। सो या, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू वी विल एनालाइज कि कैसे कर सकते हैं, एंड वी विल बिगिन। ओके, so now I want Kishore to unmute himself and read the article. क्या लिखा हुआ है इस पे? Just read it. Come on, Kishore. Come on, unmute yourself and read it. Under Ahmedabad mountaining garbage, it's a migrant worker who is crumbing. Crumbling. Yeah. Crumbing. तो पहली चीज ये करते हैं, इस चीज को डिकोड करते हैं कि पहला चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि दैट इज द अबाउट अहमदाबाद गार्बेज माउंटेन। ओके, बट व्हाट रियली दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो हम एक एक करके इस आर्टिकल को ब्रेक करेंगे। दिस इज अ आर्टिकल फ्रॉम अ न्यूज एजेंसी, और हम इसको ब्रेक करेंगे और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि गार्बेज माउंटेन जो अहमदाबाद में है या जो पूरी इंडिया में है, उसको हम कैसे, उस वो क्या इशू है, पूरा इशू हम एनालाइज करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, I want Nandini to come off mute and tell me what she understand by this word migrant worker. Nandini, can you come off mute and tell us? अपने आप को अनम्यूट करो नंदिनी, एंड टेल अस कि माइग्रेंट वर्कर से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। Anybody else? She's like not comfortable, I think. So anybody else wants to try? Dimple, you want to try? Veenal, or you can use chat box. Okay. So how many of you know? Use chat box, type yes, I know, or I don't know. Hi Dharmen. So we have begin the class. हम इस आर्टिकल पे पढ़ाई कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नेक्स्ट टॉपिक ही है। सो जस्ट हैंग ऑन, कुछ अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। सो लेट मी ब्रेक अप दिस विथ यू। पहले मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ। अंडर अहमदाबाद माउंटेनिंग गार्बेज, तो पहली चीज ये क्लियर हो जाती है कि गार्बेज का एक माउंटेन है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है, ठीक है। इट इज द माइग्रेंट वर्कर। माइग्रेंट वर्कर उसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश और यूपी। ओके, नाउ सपोज आई गो टू अहमदाबाद फॉर अ वर्क। सपोज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, ठीक है। देन आई एम अ माइग्रेंट वर्कर। तो जैसे इस पिक्चर को आप देखते हो, सो दीज आर द माइग्रेंट वर्कर्स हु आर गोइंग बाई ट्रेन इन कोरोना वायरस टाइम फ्रॉम देयर होम टू देयर नेटिव होम और टू अहमदाबाद और टू सम प्लेसेस। तो ये आर्टिकल उस चीज के बारे में बात करने वाला है, मुझे लगता है कि माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्रम्बलिंग वर्ड इज अ वेरी टिपिकल वर्ड। सो आई नो कि आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्रम्बलिंग वर्ड। सो व्हेन यू सी दिस पिक्चर, कैन एनीवन गेस व्हाट दिस वर्ड कुड हैव द मीनिंग? मतलब इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा इस पिक्चर के साथ को रिलेट करके? प्लीज ट्राई, इफ एनीवन वांट्स टू ट्राई जस्ट शो मी थम्स अप। What could be the meaning of this word crumbling? Yes, Kishore, Kumkum, come off mute, or Kishore. Yes, Kishore, come off mute. Tell us, what do you understand by crumbling? Kumkum. Yes, Nandini, do you want to try? आप ट्राई करना चाहते हो? Okay, so let me ask Dimple. Dimple, can you come off mute and try कि इस crumbling word का क्या मतलब हो सकता है by seeing this picture? छोटे छोटे टुकड़े। एक इंसान के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, और इस किस इंसान की बात हो रही है डिम्पल इस टॉपिक में? माइग्रेंट वर्कर्स। तो इनके छोटे छोटे टुकड़े का मतलब ये तो क्या हो सकता है कि इनके टुकड़े किए जा रहे हैं इस गार्बेज माउंटेन की वजह से, या
नहीं, तो क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा होगा, राइट? Yes. तो क्रम्बलिंग का मतलब वही होता है कि व्हेन सम पार्ट ऑफ पीसेस ऑफ यू इज टेकन अवे, कुछ कुछ चीजें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं धीरे धीरे, और जो आपकी जो रियल हेल्थ है या कोई इशू है वो उसकी वजह से हो रहा है। तो इसी चीज के बारे में आर्टिकल है, और हम अभी डिटेल में पूरा समझेंगे कि क्या आर्टिकल है, ठीक है? और उसको डिकोड करना मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? सो अगर इतना समझ में आया अभी तक तो शो मी थम्स अप इफ यू गाइज अंडरस्टूड दैट मच, कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया। कुमकुम गॉट इट, धर्मेन गॉट इट, ओके, ठीक है। जिसको नहीं आया वेट करो, अभी पूरा समझ में आ जाएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है? तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नाउ वेट, so now I want one of you to come off mute and read this one. So who wants to volunteer? कौन चाहता है पढ़ना इसको, राइट? थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जितना थोड़ा सा भी ट्राई करना चाहता है। रेज हैंड किया है किशोर ने, रेज हैंड किया कुमकुम। कुमकुम डू यू वांट टू कम? वीनल, लेट्स हियर योर वॉइस। हाँ वीनल, ट्राई करो इसको पढ़ना, जस्ट ट्राई टू रीड इट। वीनल इज गॉन, ओके, शी इज हैविंग अ नेटवर्क इशू गाइज। सो वी विल हैव, लेट्स हियर फ्रॉम कुमकुम। यस कुमकुम, कम ऑफ म्यूट और इसको पढ़ते हैं, ठीक है? आ जाओ, रीड इट। या As you approach Noral, you see the silhouette silhouette of something growing like a mountain. blinking in the sunset. Very good. Okay, now I will take someone else's. Huh? Kishore, now you go ahead from this soon enough sentence. Soon enough, you realize it is an open land field, one that holds nearly all of Ahmedabad solid waste. Yeah. Next. The Yeah. Pado, pado, pado. Read the next sentence also. the Pirana land hill is Ahmedabad is the seventh largest open landfill in India in terms of land area and amount of solid disposed. Okay, wait. Now, Dimple, read from this one. जब तक बाकी ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ सोचो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है? डिम्पल, कम ऑफ म्यूट और यहां से पढ़ना, लोकली नोन एज। यस डिम्पल। Locally known as Kachka, कचरे का हिंदी कचरे का ढगला, ढाकला, या ढोकला, ढोकला, ढोकला नहीं होता है अहमदाबाद गुजरात, या and then of garbage. It is a massive amount of garbage spread over 84 yeah hectares, hectares 207.569 acres of land and reaching a height of over 200 meters. wait. Now Dharmen, come off mute and read this the last sentence. Dharmen, can you hear us? Or Nandini, anyone can try. Okay, Dharmen, go ahead. यहाँ से पढ़ो, it has been, last sentence.
हाँ ठीक है, सो लेट मी कंप्लीट। हाँ आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है एंड मेरा इंटरनेट भी थोड़ा अनस्टेबल है। सो मैं अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ करूँगा अपना, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, बट I will be teaching you. Okay. So the last sentence is, it has been the city's sole repository of garbage since 1980s. अब मैं क्या करने वाला हूँ guys? Now I will Can you guys hear me? Someone just say, come off mute and say, yeah, you can hear me. Okay. Okay, sorry, I can't like. Okay, sorry. So now I'm going to decode. अब जो मैं करने वाला हूँ, I am going to decode this. तो मेरे को follow करना धीरे धीरे, ठीक है? So पार्वती has joined. तो पार्वती को थोड़ा सा brief कर देते हैं. So hi Parvati, can you hear me? या ओके पार्वती, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं जैसे हमने कल पढ़ा था, राइट? एक डिफरेंट आर्टिकल है, तो उसको ध्यान से देखो, मैं डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो गाइज सी, बहुत ही ध्यान से मेरे को देखना और अब पेन और कॉपी के साथ ऑब्जर्व करना कि व्हाट आई एम थिंकिंग एंड हाउ आई एम डूइंग दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं तो शो मी थम्स अप। इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर? क्या करना है, मुझे बस देखते जाना है कि मैं कैसे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहा हूँ, ठीक है? डिकोड कैसे कर रहा हूँ। वेरी गुड। सो पार्वती डोंट वरी, आर्टिकल है जैसे कल किया था वैसे ही है, डिफरेंट आर्टिकल है, थोड़ा टफ है कल की तुलना में, लेकिन बहुत ईजिली डिकोड करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग, जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, एज यू अप्रोच नारोल, नारोल मतलब वहाँ एक जगह है अहमदाबाद में, दैट इज व्हाट आई एम गेसिंग, क्योंकि आई एम नॉट थिंकिंग कि ऐसा कोई वर्ड हो सकता है। यू सी द सिलॉइट, तो सिलॉइट मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसका क्या मतलब होगा, तो मैंने पढ़ा यू सी द सिलॉइट ऑफ समथिंग कर्विंग लाइक अ माउंटेन, ठीक है? कर्विंग लाइक अ माउंटेन यानी कि गार्बेज का माउंटेन, यानी जो अहमदाबाद में गार्बेज का माउंटेन है उसी की बात हो रही है। तो मुझे उससे आइडिया लग गया कि ये उसी माउंटेन की बात हो रही है जो गार्बेज का माउंटेन है। यस कुमकुम, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके, सो आई एम बिगिनिंग, बर्निंग इन द सनसेट। तो जो देखो इस आदमी को देखो, तो मैंने एज्यूम किया सिलॉइट का मतलब ऐसा होगा कि देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द, sorry for this glitch, my network is little bit tricky, sorry, अभी लोड होने दो, wait, okay, so let it load up, sorry, टेक्निकल प्रॉब्लम्स गाइज। हाँ, सो मैं इसी पे समझा देता हूँ। ओहो, ओके, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन फॉर 30 सेकेंड्स, मुझे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग वेट करो। हाँ, मैं तब तक इसको रिजॉल्व करता हूँ, जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स। तब तक आप एक दूसरे से बात करना चाहते हो, यू कैन टॉक टू ईच अदर यूजिंग अ चैट या कम ऑफ म्यूट एंड टॉक अबाउट एनीथिंग, ओके? सो किशोर, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग, पार्वती, आई एम जस्ट फिक्सिंग अप दिस इशू। Hi. Yeah, you guys can turn on your videos and talk to each other. आपके पास टाइम है 2-3 मिनट्स का, तब तक मैं इसको Hi. या जस्ट सेम क्लासरूम इन्वायरमेंट एज्यूम करो गाइज, ठीक है? जितनी जल्दी कंफर्टेबल हो गए उतना अच्छा है, क्योंकि साथ में पढ़ना है आप लोगों को अब आगे 2-3 साल 4 साल जितना भी, राइट? 4 साल? मतलब आई डोंट नो कि आपको मतलब अभी तो साथ में ही पढ़ना है, राइट? तो Yes. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो आप लोग बातें करो एक दूसरे से, तब तक मैं इसको फिक्स करता हूँ। Hi to all. Yeah, say hi to Kishore, guys. Talk to each other. Hi. क्या कर रहे हो सब? बैठा। बैठे हो? जी धर्मेंद्र। हाय। अकेली पड़ी है डिम्पल? हाँ।
खुद का मोबाइल? ना ना मां भाई है। बस तो खुद का है मेरा। हाँ तो थार तो वही है इसमें। खुद का ले लिया अभी हम दोनों ने। हाँ तो नवाई करी। हाँ। हाँ गणी नवाई करी है को। 2 मिनट। हाँ कौन कौन है देखता हूँ। सिंह, डिम्पल, अरविंद, कुमकुम। ना ना कुमकुम? सर वो चालू नहीं रहती। कुमकुम। हमारा पति हमारे नहीं पति। हाँ टॉक टू ईच अदर गाइस। कुमकुम बात करो, तब तक मैं फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी प्रेजेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग बात करो तब यस तक। सर। 75। डिम्पल कुमकुम को बुला। हाय डिम्पल। हाय। कुमकुम वीडियो चालू कर। नहीं नहीं क्या कैमरा खराब है क्या? ना। ठीक है, क्या? तो आई हैव रिजॉल्व्ड इट। हाँ, फिर बात करते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ ओके, अच्छा आप लोग बात कर लो। गुड़ी ने क्या किया है थोड़ी देर तो क्या कर रही है कुमकुम? पढ़ाई पढ़ाई कर। पढ़ाई कर रही है? हाँ लग तो नहीं रहा है। हाँ तो क्या लग रहा है? लग रहा है बेटी है। गाने सुनिए खाली एयरफोन डाल के। ठीक है, ठीक है किशोर, नाउ वी विल वेट। हाँ, आप अपने आप को म्यूट कर लो, सारे अपने आप को म्यूट कर लो। नाउ वी विल स्टार्ट। हाँ, लास्ट में फिर अगर आप लोग फ्री रहोगे देन वी विल डिस्कस, फिर बात करेंगे, ठीक है? अभी फिर से पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है? ओके, ठीक है। जस्ट शो मी थम्स अप अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ठीक है? थम्स अप दिखा दो बस। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू वीनल, थैंक यू पार्वती, थैंक यू धर्मेंद्र। ओके, सो देखो गाइस, जैसे भी कोई न्यूज़ आर्टिकल होता है या कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, तो मैं आपको पर्पस बता दूं यहाँ पे है क्या। मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे टफ चीज़ों को पढ़ के उसको डिकोड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उनका आंसर इन्हीं पैरा में छुपा होता है। तो अगर आप अच्छी तरह से एनालिटिकली पढ़ पाओगे तो मतलब आप खुद ही आर्टिकल्स को समझ पाओगे और अपनी लाइफ में यूज़ कर पाओगे। जैसे जैसे आप क्लास 9th और 10th में जा रहे हो, सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो धीरे धीरे मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा नया लगेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो इस चीज़ को अभी पढ़ा, पार्वती आप न्यूली ज्वाइन की हो, तो हम गार्बेज माउंटेन के टॉपिक पे बात करें जो अहमदाबाद में, ठीक है? तो पहला मैं आपको डिकोड करके दिखाऊंगा। पहला सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, एज यू अप्रोच नारोल। तो जो आर्टिकल का ऑथर है, यानी जिस आदमी ने, राइटर होता है ना, तो जिस आदमी ने लिखा है इसको, ये अपनी राइटिंग में लिख रहा है। एज यू अप्रोच टू द नारोल यू सी द सिलआउट ऑफ समथिंग कर्विंग लाइक अ माउंटेन बर्निंग इन द सनसेट। अब मैं इसको ध्यान से अगर सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जब नारोल यानी कि एक जगह है अहमदाबाद में, जब मैं, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता कि सिलॉइड का क्या मतलब है, लेकिन जब इस वर्ड को मैं देखता हूँ, माउंटेन यानी कि गार्बेज माउंटेन की बात हो रही है, बर्निंग इन अ सनसेट यानी कि जो राइटर है जब वो मूव कर रहा होगा गार्बेज माउंटेन की तरफ से, तो वो सनसेट का टाइम होगा, यानी कि शाम का टाइम होगा। और सिलॉइड का मतलब कुछ ऐसा होगा कि वो किसी कर्व पे अपने आप को एज्यूम कर रहा होगा कि अहमदाबाद जैसी प्लेन जगह पे ये कैसा माउंटेन आ गया। तब उसने धीरे से रियलाइज किया होगा, अरे ये तो गार्बेज का माउंटेन है। तो मैंने फिगर आउट किया कि हाँ, इसका मतलब शायद ये होगा। मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, बट मैंने बिना जाने हुए भी कॉन्टेक्स्ट को समझ के इस वर्ड का मतलब निकाल लिया। अ पर्सन हु इज हुज शैडो लाइक अ माउंटेन का शैडो एक सनसेट में ग्लिम्स के थ्रू आ रहा है। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो शो मी थम्स अप। अगर आपको हम जब दिखा मारूंगा। किशोर म्यूट योरसेल्फ। हाँ किशोर, या थैंक यू। आप लोग को ये सेंटेंस समझ में आया, थैंक यू। तो अब आगे देखता हूँ, मैं डिकोड करता हूँ, ठीक है? सून इनफ यू रियलाइज इट इज एन ओपन लैंडफील। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ओपन लैंडफील क्या होती है।
तब मैंने देखा कि अहमदाबाद की जो पिक्चर है गार्बेज माउंटेन की, यानी कि वो ओपन एरिया में, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन दिमाग में मेरे ये आया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफिल, यानी कि जो गार्बेज है उसको फिल करने के शायद कई तरीके होते होंगे, एक ओपन होता होगा, शायद एक क्लोज होता होगा। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफिल, यानी कि गार्बेज को फिल करने के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, इतना सा पढ़ने के बाद। आप लोगों को गार्बेज जैसे होता है, तो एक तो आप अहमदाबाद का माउंटेन जानते हो जो ओपन लैंडफिल में, क्या कोई और तरीका है गार्बेज को फिल कहीं पे डिकम्पोज करने का, या किसी और तरीके से आपने देखा हो कि गार्बेज रखा जाता है? यस किशोर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। So there are 3 or 4 ways to fill the garbage. First, जो माउंटेन बनाने लगा गार्बेज का। सेकेंड सर, लैंड में हम लोग मतलब खोद के उसके अंदर हम लोग गार्बेज सेंड कर सकते हैं। वेरी गुड। और ऐसे एक जगह से बना के उस पे हम लोग गार्बेज फेंके या फिर उस पे रखे, ऐसा भी एक। अच्छा, सो डू यू गाइज एग्री विथ किशोर्स ओपिनियन? आप लोगों को समझ में आया किशोर ने क्या बोला? अगर समझ में आया तो शो मी थम्स अप। डिम्पल, कुमकुम गॉट इट, तरमीम गॉट इट। नंदिनी और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं तो 2-3 तरीके के लैंडफिल्स होते हैं, यानी कि अगर आप लैंड के अंदर रख के जाते हो, डिकम्पोज करते हो, तो वो एक अलग तरीके है। खाद बनाने के टाइम पे आपने देखा होगा कि उस तरह से भी डिकम्पोज करके करते हैं। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट हमने सोच लिया कि हाँ देयर आर पॉसिबल वेज, इसको पढ़ने के बाद। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, तो मैं आगे पढ़ता हूँ। सून इनफ यू रियलाइज इट्स एन ओपन लैंडफिल, वन दैट होल्ड्स नियरली ऑल ऑफ द अहमदाबाद सॉलिड वेस्ट। यानी कि जो वो गार्बेज माउंटेन है अहमदाबाद का, वो सारा जो सॉलिड वेस्ट यानी कि जो कूड़ा होता है, वो सारा कूड़ा अहमदाबाद का वहीं पे डिकम्पोज होता है, मतलब वहीं जाता है। तो आई थॉट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट? तो क्या सॉलिड वेस्ट में कोई लिक्विड कंपोनेंट भी आता है क्या? तो आप लोगों ने उस माउंटेन को देखा है, राइट? तो आप मुझे बताओ, क्या क्या उसमें सॉलिड चीज़ें ही रहती हैं कि कुछ लिक्विड चीज़ें भी रहती हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स भी रहते हैं, या कुछ वैसा रहता है जो कि सॉलिड ना हो? है ऐसा? सो आई विल आस्क पार्वती, डिम्पल सिंह, या है ऐसा? सो पार्वती, कैन यू कम ऑफ म्यूट एंड टेल मी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है उस अहमदाबाद के गार्बेज माउंटेन में? पार्वती, कैन यू लिसन, कैन यू हियर मी? सो जस्ट Yes. कम, या पार्वती, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये स्क्रीन भूल जाओ, स्क्रीन इज थोड़ा सा, आई एम फेसिंग एन इशू, बट डोंट वरी, आई एम फिक्सिंग इट अगेन। तब तक आप बताओ कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह के वेस्ट आपने देखे हैं उस गार्बेज माउंटेन के आसपास जाते हुए। कुछ 2-3 तरह के वेस्ट का नाम बता सकते हो तो बताओ। The plastics. वेरी गुड। और प्लास्टिक, घर का सब्जी एंड ऑल दैट, राइट? और जो भी कचरा निकलता Yeah. है, दैट ऑल गोज देयर। सो यू गाइस कैन सी द स्क्रीन, राइट? या, सो सही है जैसा पार्वती बोल रही है। तो देयर कुड बी अ लिक्विड ऑल्सो, देयर कुड बी अ लिक्विड गार्बेज ऑल्सो। तो सॉलिड वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सॉलिड ही होगा, वो एक अलग कैटेगरी है जो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में बस क्वेश्चन आया पढ़ते टाइम, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था, लेकिन मुझे क्वेश्चन आना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ। द पिराना लैंडफिल इन द अहमदाबाद इज द 7th लार्जेस्ट ओपन लैंडफिल। देखो कैटेगराइज कर रहा है, जो मैंने बोला था ओपन लैंडफिल को यहाँ पे वो कैटेगराइज कर रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि क्लोज लैंडफिल, ओपन लैंडफिल के कंपैरिजन में दैट इज द 7th लार्जेस्ट, यानी कि वर्ल्ड मतलब इंडिया में 7th लार्जेस्ट यानी बड़ा है सॉलिड वेस्ट जो कि ओपन एरिया में है, मतलब अहमदाबाद का 7वां बड़ा मतलब गार्बेज, यानी कि इंडिया में और ऐसे गार्बेज माउंटेन हैं। तो पहले तीसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि देयर आर डिफरेंट प्लेसेस वेयर द गार्बेज माउंटेन्स आर देयर। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द प्लेसेस जहाँ पे गार्बेज माउंटेन होते हैं इंडिया में, और उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, लोकली नोन एज कचरे का ढाकला, हिल ऑफ गार्बेज, ढोकला और ढाकला।
तो अहमदाबाद की लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कचड़े का ढोकला, यानी कि उस जगह को। इट इज अ मैसिव माउंड ऑफ गार्बेज स्प्रेड ओवर 84 एकर्स। माउंड का मीनिंग मुझे नहीं पता था, लेकिन माउंड का मीनिंग मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैसिव से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, गार्बेज से मुझे समझ में आता है उसी के बारे में बात हो रही है। पिछले सेंटेंस में बोला गया है कि वो 7th लार्जेस्ट है, अब उसके एरिया की बात हो रही है, वो कितना बड़ा है, 84 हेक्टेयर्स। 84 हेक्टेयर्स को अगर मैं किलोमीटर्स में बांटता हूं तो वो अराउंड 1 किलोमीटर का आता है। डिड यू गाइज अंडरस्टूड दैट मच? शो मी थम्स अप। कनेक्शन समझ में आ रहे हैं आपको जो मैं कर रहा हूं? ओके, बहुत ही सिंपल सा है। जो बात टॉपिक कैसे फ्लो कर रहा है उसको समझो। पहले वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि सबसे बड़ा है, फिर वो बता रहा है कि कितना बड़ा है, ठीक है। तो बता रहा है 84 हेक्टेयर्स। तो मैं गूगल के पास जाके पूछता हूँ कि गूगल भाई व्हाट इज द, कन्वर्ट कर दो जरा 84 हेक्टेयर्स को किलोमीटर्स में। तो उसने बोला कि 84 हेक्टेयर्स मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर मतलब स्क्वायर एरिया में, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर बड़ा है लेंथ में, ठीक है। मैंने पूछा हाइट कितनी है, तो राइटर बोलता है कि 200 मीटर लंबा है, यानी कि इन लोगों ने सालों से इसको प्लॉट करते करते इतना ऊंचा कर दिया है गार्बेज माउंटेन को कि इट्स अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर। तो अगर आप एज्यूम करो 100 मीटर नीचे अगर कहीं आप वॉक करते हो, ठीक है, अराउंड से आपको 5 मिनट लगता है, तो आपको उसके माउंटेन पे चढ़ने पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम से कम 10 मिनट लगेगा अगर वो प्लेन उसमें है। तो इतना बड़ा बना दिया उन्होंने, ठीक है, और आपने देखा है तो आप जानते हो, यानी कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इट हैज बीन सिटीज सोल रिपोजिटरी ऑफ गार्बेज सिंस 1980। तो मुझे पता है, जब मैं इस हाइट को देख के मैंने वो क्वेश्चन किया अपने ब्रेन में कि इन्होंने बहुत सालों से इसको किया है, तो देखो सालों की बात आ गई, यानी कि 30 साल से जो अहमदाबाद का गार्बेज है वो वहां पे प्लॉट हो रहा है। अभी हम 2020 में, सॉरी 40 ईयर्स, सॉरी, तो 40 ईयर्स हो गए जब से ये लोग प्लॉट कर रहे हैं, मतलब उस जगह पे गार्बेज को डालते जा रहे हैं। सो आप लोगों को समझ में आया कि आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन नाउ। टेल मी कि हाउ मेनी ऑफ यू गॉट कि मैं कैसे चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा? किशोर, धर्मेंद्र, अगर लगा तो जस्ट शो मी थम्स अप, हाँ, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि कैसे लिखते हैं आर्टिकल को और कैसे समझना है और कैसे क्वेश्चंस को रेज करना है खुद के ब्रेन में, ठीक है। नंदिनी, कोई दिक्कत है तो आप कम म्यूट अनम्यूट करो अपने आप को और क्वेश्चन पूछो मुझसे। पार्वती, नंदिनी, कोई भी क्वेश्चन अभी तक आ रहा है किसी के माइंड में, सो आस्क मी। नो क्वेश्चन, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। ओके, कभी भी कोई क्वेश्चन है रेज करो हैंड या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेना, या चैट बॉक्स का यूज करना, ठीक है। धर्मेंद्र, इफ यू हैव क्वेश्चन तो मुझे से पूछना, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो मैं स्टेप्स बताता हूं कि स्टेप्स वाइज कैसे किया मैंने पहले पैरा को आप लोगों को पढ़वाया और खुद भी पढ़ा। स्टेप नंबर 1, आई रेड द पैराग्राफ। सेकंड क्या किया, मैंने ब्रेक किया स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में और फिर मैंने डिकोड किया। थर्ड मैंने किया ट्राई टू अंडरस्टैंड द अननोन वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो अननोन वर्ड्स थे, सिलॉइड, माउंड, लेकिन मुझे उसका मीनिंग समझ में आ गया तो मैंने उसको विजुलाइज कर लिया सेंटेंस के इधर पढ़ के और सेंटेंस के उधर पढ़ के कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि टॉपिक क्या चल रहा है। फाइनली वाइल रीडिंग आस्क द क्वेश्चन, मतलब खुद से मैंने क्वेश्चंस पूछे, ये सारे क्वेश्चंस, तो ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू मुझे पता चल गया कि डेप्थ पता चल गई और मुझे सर्च करने का मौका मिल गया कि हाँ क्या क्या चीज़ें और पढ़ी जा सकती हैं इस आर्टिकल को जानने के लिए, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ लिखने को नहीं बोलूँगा अभी, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों का टास्क ये है कि बहुत अच्छे से वीडियो को देखो, ठीक है। दिस इज अबाउट अ गार्बेज इन अ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में एक नरेला एक जगह है, वहाँ पे ऐसा ही गार्बेज माउंटेन है जो आपकी सिटी में। तो देखो और सुनो कि, और लिखते जाना साथ साथ चैट बॉक्स में या अपने नोटबुक में, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मिनट्स की वीडियो है और ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन की रेसिडेंट्स जो है वहाँ के लोकल लोग हैं उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है इसकी वजह से, और प्लीज नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं तो शो मी थम्स अप इफ द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। ओके डन। धर्मेंद्र, इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर? ओके धर्मेंद्र, थैंक यू। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
अगर आप लोग आवाज सुनने में कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना तुरंत, ठीक है? हियर सो या किशोर, you can ask the Need a professional website? yes, Your voice is not clear. Using Wix. Let me show you how I did it. First, गाजीपुर now can you hear me Kishore? Can you hear me Kishore now? Yes, sir. Okay. Can you hear the audio जो अभी चल रहा है, वीडियो और ऑडियो? Can you see? जो है कूड़े की वजह से फेमस। Yes. वेरी गुड। अब सबका काम ये है कि नोटबुक ले लो और ध्यान से ऑब्जर्व करो कि रेसिडेंट्स क्या कह रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को देखो, सुनो, हर एक आदमी बच्चा सब बोलेंगे, ठीक है? ध्यान से सबके ऑब्जर्वेशंस पे देखना। आई विल आस्क द क्वेश्चन आफ्टर दिस कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है? नोट योर ऑब्जर्वेशन। है आग तो हमेशा लगती रहती है इस कूड़े के अंदर, सांस दम घुटता है। 2 साल हो गए, कुछ भी बदलाव नहीं है। महेश जी, क्या हुआ तुम्हारा वादा? Almost 19 months after chunks of waste came tumbling down from this massive landfill site behind me, Delhi's Gazipur continues to live in the fear of another trash slide. Even after so many months and after so many promises, dumping of waste continues at this shamefully massive landfill site behind me. नहीं, बिल्कुल इसका डर बना रहता है कि ये गिर जाएगा, और बारिश में नहीं, बिना बारिश के भी डर लगा रहता है, क्योंकि कई बार ये ऐसे गिरता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके ये इसका गिरता रहता है। और इसमें आग लगने की बात तो आम बात है, आग तो हमेशा लगती रहती है इस कूड़े के अंदर। अभी पिछले हफ्ते भी आग लगी थी, तो मैंने फिर 100 नंबर को कॉल किया था, तो 3 दिन में जाकर के इसकी आग बुझा पाए दमकल कर्मी और सारे विभाग वाले। ये आग हमेशा अक्सर लगती रहती है 2-4 दिन में, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, सांस की बीमारी हो गई वाइफ को। हाँ, आग से धुएं के मारे इतने परेशान हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, क्या समझे। यहाँ कम से कम आधी कॉलोनी वाले बीमार हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं। दूषित हो गया यहाँ का पानी, जो हम बोरवेल से पानी पीते हैं, तो वो इतना दूषित हो गया है इसकी खत्ते की वजह से कि हमारे घर में बीमारियाँ हो गई हैं। मेरी भाभी को कैंसर हो गया है, और मेरा एक छोटा बच्चा बीमार है, उसे सांस की प्रॉब्लम हो गई है। बारिश के टाइम भपका बनता है कूड़े में, अंदर जो नीचे दबा हुआ कूड़ा है, फिर उसका भपका बन के गैस निकलती है बाहर, गंदगी बन जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं बहुत गंदे। फिर यहाँ आते हैं, लोगों को काटते हैं, बीमारी दे जाते हैं, तरह तरह की बीमारी हो जाती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। कोई लोग आने को तैयार नहीं होता यहाँ पे। कह रहे वो मुल्ला कॉलोनी जिसमें क्या कहना वो खत्ता है, कि देखिए कितनी बदबू आती है। शादी हमने करी है 2 लड़की ने कि भैया धक्का मार मार के करी है हमने। क्या परेशानी आ रही थी बताइए। यूँ कह रहे हम नहीं जा रहे, माँ खत्ता है, कोई गंद है, वहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ से लड़की नहीं ला सकते, और इतने बीमार हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। रिश्तेदार कोई नहीं, रिश्तेदार हमारा आने को तैयार ना कोई आता है। ये कहते हैं कि कहाँ रह रहे हो गंद में, कोई नहीं आता यहाँ पे। जब मैं खेलने के लिए मिलाता हूँ तो मेरे दोस्त मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बदबू आती है और गंदगी है यहाँ पर। Delhi produces around 10,000 metric tons of garbage on a daily basis, out of which around 2,000 metric tons are dumped here at Gazipur. Now, several measures had been suggested, including the construction of a waste-to-energy plant, but that hasn't happened. The beautification of these slopes in order to stabilize them and introduce green patches also was suggested, but that too hasn't happened either. उन्होंने आके बोला था जल्द से जल्द खत्ता हटवा देंगे। महेश गिरी ने बोला था, MP थे यहाँ के हमारे, और मनोज कुमार जो MLA उन्होंने बोला था, लेकिन अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। MCT के चेयरमैन में आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हटा देंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इसको हटाने के लिए नहीं हुई है। उसके बाद तो ऐसा लगता है, आप देखेंगे तो कूड़ा डालना और ज़्यादा शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा ट्रक आते रहते हैं, और अब उससे ज़्यादा ये, और इसमें मुझे लगता है कि 30 फीट और ऊंचाई इसकी बढ़ा दी गई है गिरने के बाद से, 2017 से। मगर बात यह है कि 2 सरकारों को देख लिया आप। So hi, so you guys have seen, can you guys come, मतलब आप लोग अगर वीडियो, if you guys वीडियो ठीक है तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हो, so that we can talk just for a minute, हाँ?
we will discuss about it. So धर्मेंद्र, can you but कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते तो म्यूट अनम्यूट करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो पहले आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? जस्ट टेल मी योर ऑब्जर्वेशंस बाय वाचिंग दैट वीडियो. जस्ट शेयर. आई एम टेकिंग पार्वती's yes Parvati, go ahead. Sir, nobody come for there. Nobody come for, मतलब वहाँ कोई आता नहीं है. She is saying कि रियली मैं वहाँ दिल्ली में रहा हूँ, सो आई हैव लिव्ड देयर अराउंड 5-6-7 years. तो लेट मी टेल यू कि वो आउटस्कर्ट में है, लेकिन व्हेन यू गो देयर, तो जब मैं ट्रेन से पहली बार गया था, देन आई थॉट कि वो एक माउंटेन है, राइट? सो बट किसी ने फिर मुझे बताया भैया माउंटेन नहीं है, वो कूड़े का ढेर है. आई वाज लाइक कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में आउटस्कर्ट में अरावलीज माउंटेन भी है, ठीक है? सो नेक्स्ट थिंग किसी ने क्या ऑब्जर्व की? किशोर हैज रेज हैंड. या किशोर, शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो जहाँ जो कूड़ा था उसकी वजह से माउंटेन बनाया था, उसकी वजह से सर ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी. दूसरों को मलेरिया हो गया था, डिजीजेज अलग तरीके की हो गई थी, टाइफाइड हो गया था, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो गई थी उसकी वजह से. और लोग उधर रहना पसंद ही नहीं कर रहे थे कि हाँ ये जगह हम लोग रह सकते थे पहले, लेकिन अभी हम रह ही नहीं सकते. और 2000 टन वहाँ पे कूड़ा फेंकते दिल्ली वाले, दिल्ली के लोग वहां से कूड़ा फेंकते थे, इसलिए और ज्यादा बढ़ रही है उधर की गंदगी. वेरी गुड. सो यस डिम्पल, गो अहेड. भैया वहाँ पे फायर लग रही थी, फायर की वजह से कोई सांस नहीं ले पा रहे थे. वेरी गुड. और उनकी फायर भी जल्दी नहीं बुझती थी. उन्होंने कहा 3 days में फायर बुझती है. Excellent, excellent observation. Thank you, Dimple. Nandini, do you want to say something? धर्मेंद्र, कुछ भी आपने देखा जो ऑब्जर्व किया, आप बोल सकते हो. वीनल, हाँ धर्मेंद्र. उधर वो कचड़े के ढेर की वजह से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, बीमारी हो रही थी. पानी गंदा हो गया था, तो वो 7 साल के बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम थी. बच्चा क्या कह रहा था धर्मेंद्र? बच्चे क्या कह रहे थे? तो बच्चे ने कुछ बोला था. हाँ, वो अगर दोस्तों को बुलाते तो वो भी मना कर देते, कोई उधर आना पसंद नहीं करता. ठीक है, बिल्कुल सही. तो सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सांस या उसकी प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम हर एक सेक्शन, यानी कि छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेके किसी को भी देख लो आप, सबको प्रॉब्लम है उसकी वजह से. बट स्टिल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है. तो ये भी एक सोचने की बात है कि कोई भी कोशिश नहीं कर पाता उस चीज़ को चेंज करने की. तो ये आर्टिकल वही है जो उसने बोला था ना, जो 7th लार्जेस्ट है अहमदाबाद का, तो दिल्ली का जो आता है वो टॉप 3 में आता है, ठीक है? दिल्ली का उससे भी बड़ा है, ठीक है? क्योंकि अहमदाबाद छोटी सिटी है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड यू गाइज टू अंडरस्टैंड नाउ. अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है. अब उसी आर्टिकल का जो पैरा है, आप अपना वीडियो बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो. सो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन. अब उसी लेट मी ओपन अप. Wait, 2 seconds. I'm having a little bit technical problem today. वेट गाइज, 30 सेकेंड्स. थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है. आई डोंट नो, इंटरनेट थोड़ा सा आज वीक है मेरा. So we will wait for, yeah, now it's loaded. Thank God. So yeah, so आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग पेन और कॉपी तब तक ले लो, ठीक है? या चैट बॉक्स का यूज़ करो अगर आप लोग बाहर हो, और ऑब्जर्व करना जो भी अभी मैंने एक्सरसाइज की, सेम लाइन पे एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है? और जस्ट टेल मी कि आपको क्या समझ में आया. आपने ये वीडियो देख लिए, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हो चुका है. अब ये आर्टिकल है वो आप पढ़ो, ठीक है? ये आर्टिकल ध्यान से पढ़ो, समझो कि क्या इसका मीनिंग है. आई एम गिविंग यू 30 seconds टू डू दैट. 30 seconds नॉट, 3 minutes टू डू दैट, ठीक है? आर्टिकल पढ़ना है,
साथ साथ ये नहीं कि आपको लिखने जाना है, आपको बस आर्टिकल पढ़ के उन वर्ड्स को हाईलाइट करके बस ये समझने की कोशिश करनी है कि मीनिंग क्या है। तो जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, पहला स्टेप मैंने क्या किया था कि रीड किया था पैराग्राफ, छोटे छोटे सेंटेंसेस पे ब्रेक किया था, फिर क्वेश्चंस पूछे थे, गाइडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, और फिर उसकी मदद से मैंने डिकोड कर लिया था कि इस पैरा में क्या चल रहा है। सिमिलरली आपको ये एक्सरसाइज करनी है अभी। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू डू दैट। हाँ, सो शो मी थम्स अप इफ द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। अपनी कॉपी में आपको ये पैरा पहले पढ़ना है, ठीक है, एंड डिकोड करना है जैसे मैंने किया। ऑल्दो मैंने आपके लिए एक हेल्पिंग क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करो, कुछ अपने क्वेश्चंस बनाओ और कुछ अपनी तरह से ब्रेक करके इस पूरे पैरा को मुझे समझाना होगा आपको। यू कैन यूज़ चैट बॉक्स टू एक्सप्लेन और यू कैन राइट इन योर कॉपी। मैं आपकी कॉपी देख लूँगा, ठीक है, ऑन योर वीडियो, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर, सो शो मी थम्स अप इफ द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। Final thumbs up. Thank you, Parvati. Thank you, Dimple. Kumkum, did you understood? Okay, Kumkum. So we will begin. Dharmin, thank you. So Kishore and Veenal is having a problem with internet. So we will begin. So आप लोग start करो. Timer has started. You have 5 minutes to do that. Go ahead. The moment you are done, just show me thumbs up. Okay, Kishore? Thank you. If anyone has question, they can come off mute and ask me the question. If they have any confusion, कोई भी confusion है, unmute करो, question मुझसे पूछ लो तुरंत कि क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है? Till then, you guys have 4 minutes to do that. Yeah, Dimple, you can ask the question. Dharmen, you can ask the question if you have any question. Unmute yourself and ask the question. Sir, what do you mean by 2 decades? What do you mean by 2 decades? So खुद सोचो धर्मेंद्र की क्या मतलब हो सकता है? Decade, 2 decades, यानी कि ड्यूरेशन की बात हो रही है, राइट धर्मेंद्र? So just think कि इसका क्या मतलब हो सकता है? That is an exercise, guess करो, ठीक है? और मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जस्ट गेस करो, सोचो कि पढ़ने के बाद व्हाट इट लुक्स लाइक, कहानी के माध्यम से व्हाट यू कैन गेस की 2 डिकेड्स का मतलब क्या हो सकता है। जैसे मैंने गेस किया था, राइट, और मुझे सही भी निकल रहा था। यस वीनल? सो वीनल, व्हाट वी आर डूइंग ना कि इस पैराग्राफ को पढ़ो जो आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे मैंने एक्सरसाइज करके बताया था डिस्क्राइब करने की कोशिश करो अपनी कॉपी में। सो आई एम गिविंग यू 3 minutes टू डू दैट। हाँ, आप करो, और जब आप कर लेना तो मुझे थम्स अप शो करना, ठीक है विनल? इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर? देन शो मी थम्स अप। ओके विनल, विनल कोई भी डाउट होगा तो चैट बॉक्स यूज करना, या मुझे आप बता देना म्यूट करके। थैंक यू विनल,
So do the exercise, huh, Vinal? Yes, Dimple. भैया ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिख के आंसर करने हैं अभी? नहीं, वो मैंने लिखे हैं आपकी हेल्प के लिए कि मैं ऐसे सोचता हूँ, बट आप अपने क्वेश्चंस भी सोच सकते हो, राइट? जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, वो ऐसा क्यों हुआ, तो उसको मैं जब आगे पढ़ता हूँ तो मुझे वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं जब आप सोचते हो, राइट? तो बस वो एक्सरसाइज आपको करनी है। बस अभी के लिए ये करो डिम्पल और एवरीवन, इस पैराग्राफ को जैसे पढ़ते हैं पढ़ के इस कहानी को समझने की कोशिश करो कि किसके बारे में बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगे और उसका मीनिंग आपने कैसे फाइंड किया। ठीक है? ठीक है डिम्पल? यस। बस थोड़ा सा जिस्ट हमें समझना है कि हमें स्टोरीज को कैसे पढ़ना सीखना है। ठीक है? बस so all of you have 2.5 minutes to complete that. Last 1 minute, guys. So wrap it up, huh? And those guys who are watching this recording after the class, it is a humble request. जैसे ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग देखते समय ऐसे ही प्रैक्टिस करो कमरे पे, ठीक है? Whenever you guys watching the video. So this is a humble request, huh? Not to you guys. Dimple, thank you. You are done. Very good. So waiting for others to complete this exercise. जितना भी हो जाए, just read it, make a picture in your brain. Very good. Thank you, Vinal. Kumkum is done. Thank you, Kumkum. So last 30 seconds to wrap it up. Dharmendra, Parvati, and others. जितना भी आप लोग समझ पाओगे कोई बात नहीं. I will guide other half. ठीक है? ठीक है. सो लेट्स स्टॉप नाउ. जिसने भी कर लिया और जो भी बाकी बचा है वो करता रह सकता है. सो आई हैव सीन डिम्पल हैज कंप्लीटेड, सो आई विल आस्क डिम्पल टू अनम्यूट हरसेल्फ एंड टेल मी कि व्हाट शी अंडरस्टैंड बाय दिस पैराग्राफ. गो अहेड डिम्पल. मुझे इससे समझ में आया कि एक पानी भाई था, ओके, जो उत्तर प्रदेश में रहता था 18 साल से. ठीक तो है. उसकी भी कुछ ड्रीम्स थे, पर उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी. अस्थमा की प्रॉब्लम. और वो इल भी हो गया था, और वो फिर भी वर्क करता था क्योंकि जो पूरी घर की जो जिम्मेदारी थी वो सही थी. एक्सीलेंट, बहुत सही बताया आपने डिम्पल. सो क्यों उसको प्रॉब्लम हुई थी? आई वोंट आस्क डिम्पल बिकॉज डिम्पल हैज गॉट द जस्ट. आई विल आस्क समवन एल्स कि प्लीज कम ऑफ म्यूट एंड क्यों ऐसा था कि उसको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, उसको अस्थमा हो गया था, उसको एक डिजीज हो गई थी. कैन समवन टेल मी? पार्वती, धर्मेंद्र, किशोर, आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल. एनीबडी, जो भी आप, कोई भी आ सकता है अनम्यूट करके. किशोर, यस किशोर, गो अहेड. यस किशोर, गो अहेड और बताओ कि क्या प्रॉब्लम थी उसको, क्यों ऐसा था कि उसको अस्थमा हो गया था. सर जो मतलब जो थी एयर, उसमें बैड बैक्टीरिया भर गए थे, और वो जैसे ही ब्रीथ करते थे वो बैड बैक्टीरिया अंदर जाते थे, और उसकी वजह से उनको अस्थमा जैसी डिजीजेस हो रहे थे. ओके धर्मेंद्र, आपको समझ में आया अभी जो किशोर ने और डिम्पल ने समझाया? पार्वती, जिसको इसको समझ में आया वो थम्स अप करो. राइट, कुमकुम, यू गॉट इट? तो अब मैं चाहूंगा कि कुमकुम कम ऑफ म्यूट और अपनी लैंग्वेज में समझाओ बाकी बच्चों को कि आपको क्या समझ में आया.
ठीक है, and try to use English if you can use. Okay, कुमकुम, ट्राई करो, कोई बात नहीं, we are practicing. हाँ, Kumkum, can you hear? Yeah, thank you, Kumkum. Yeah. Sir, people having breathing problems because of garbage. Because in garbage there was bacteria. Okay, very good. So, yeah, so very good. So, everybody, I think Dimple, Kumkum, and Kishore and Dharmendra has got the idea. Parvati, do you have any other opinion और कुछ और ऐड करना चाहते हो आप कि जो चीज आपने देखी बाकी बच्चों ने अभी कवर नहीं कर पाए? Anything new you are seeing? Come off mute and tell us कि क्या आपने कुछ नया देखा. ठीक है, कोई बात नहीं. तो कहानी का जस्ट बड़ा क्लियर सा था, ठीक है, और ये कहानी उसी से रिलेटेड थी जो वीडियो आपने देखी, जो बाकी रेसिडेंट्स बोल रहे थे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. आप लोग अब सोच पा रहे हो, क्वेश्चंस का रीजन भी कर पा रहे हो, आपने ये भी समझ लिया कि अस्थमा क्या है. तो दीज क्वेश्चन जो मैं लिखता हूँ ये गाइडिंग क्वेश्चंस हैं. कल अब जैसे मैं होमवर्क दूंगा तो इसी का एक पैरा दूंगा, नेक्स्ट पैरा, यानी कि इसी आर्टिकल का नेक्स्ट पैराग्राफ, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. अभी तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा कि इसमें कौन सा टॉपिक था, इसमें कौन किसके बारे में बात हो रही थी. शाहिद भाई के बारे में बात हो रही थी. वो कहाँ से था? आजमगढ़ से था. ऐसा क्यों हुआ? उसको क्यों इलनेस हो गई? तो अस्थमा की वजह से. क्यों अस्थमा हुआ? क्योंकि गार्बेज था. नियरली 2 डिकेड्स का मतलब होता है धर्मेंद्र, डिकेड मतलब होता है 1 डिकेड मीन्स 10 years. ओके धर्मेंद्र, एंड 2 डिकेड्स मीन्स 20 years, यानी कि वो 20 years आफ्टर लिविंग इन द 20 years, मतलब 20 years से अहमदाबाद में है. ओके, और एक बड़ा ही क्लोज इंसाइट है, अगर मैं आप लोगों को ध्यान से देखूं, आप लोग फिर से पढ़ना इस पैराग्राफ को, मैं भेज दूंगा ये पूरा आर्टिकल. आई हैव ओनली हैड वन ऑप्शन, रेंटिंग आउट द स्मॉल रूम क्लोज वेयर आई वर्क. आई फाइंड इट रियली हार्ड टू ब्रीथ लेट इवन in the evening as air is filled with fumes and smoke generated the burning waste, यानी कि जो जल रहा है कूड़े में से, उसकी वजह से मुझे अस्थमा तो हो ही गया है. ऑल्सो मैं अभी तक 20 years से यहाँ पे रह के आया हूँ. जो ड्रीम्स लेके मैं आया था और जो मुझे मिला है अहमदाबाद से, उस जगह पे रहने की वजह से मेरी हेल्थ डिस्टॉर्ट हो गई है, और मुझे जो अचीव करना था कि गारमेंट का एक बड़ा शोरूम होगा, वो नहीं हो पाया. तो एवरीवन, देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज हेल्थ. अभी भी हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप लोगों को और आपके परिवार की हेल्थ सही रहेगी, देन ओनली वी कैन डू एनीथिंग एल्स. समझ रहे हो आप? नहीं तो जैसे शाहिद भाई के केस में था कि ही वाज नॉट एबल टू सी कि द इम्पैक्ट इट इज हैविंग ड्यू टू लिविंग नियर बाई. ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनको ये सिचुएशंस हैं, तो उनके बारे में सोचना है आपने कि क्या क्या सोल्यूशंस निकाल सकते हो एंड ऑल दैट. ठीक है, तो ये आर्टिकल उसी के बारे में था. बाकी कैसे ब्रेक करना है ये स्टेप्स बड़े क्लियर हैं. पैराग्राफ को आप पढ़ो, छोटे छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक करो, विजुलाइज करो और देखने की कोशिश करो. मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसको, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ वी थिंक. यस किशोर, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. वेट, I don't have it. Okay. So I am leaving the meeting. Okay, you can go. No worries. So I'm stopping anyway. So there is no charge in my mobile. Okay. Go ahead. So see the recording. I will learn by Dharmendra's phone. So, okay. Done. कोई बात नहीं. अब खत्म कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट बचे. Okay. So let me. Yeah. So let me share about the topper scholarship. ठीक है, let me